ऑलराइट जी, अब हम लोग पास्ट पेपर क्वेश्चन करेंगे। पास्ट पेपर क्वेश्चन या कहने एग्जाम किट का क्वेश्चन, कैप्टन एग्जाम किट का क्वेश्चन है हमारे पास ल्यूप लाइट कंपनी का। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जाम क्वेश्चन करने की जनाब टेक्निक क्या है। सिनेरियो बाद में देखना है, पहले बिल्कुल आ जाओ नीचे और रिक्वायरमेंट्स दे। ठीक है, तो ड्राफ्ट एंड एक्सप्लेनेटरी नोट टू द डायरेक्टर्स ऑफ लिपलाइट कंपनी एड्रेसिंग द फॉलोइंग। अच्छा जी, पहला क्या है, ए वन में वो आपसे कह रहा है हाउ द फेयर वैल्यू ऑफ द फैक्ट्री साइट शुड बी डिटरमाइंड एट 1 जुलाई 2004। किस तरह फैक्ट्री वैल्यू को डिटरमाइन करेंगे and why the depreciated replacement cost of 17.4 million is unlikely to be a reasonable estimate of a fair value। आपने दो बातें करनी है रिक्वायरमेंट में। ठीक है, कि पहला तो ये कि फेयर वैल्यू ऑफ फैक्ट्री साइट जो है वो किस तरह डिटरमाइंड होगी 1 जुलाई X4 पे, और दूसरा डेप्रिशिएटेड रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो है 17.4 मिलियन की, वो क्यों अनलाइकली है एक रीजनेबल एस्टिमेट फेयर वैल्यू का। ठीक है, बाकी कुछ रिक्वायरमेंट्स को बाद में देखते हैं। रेलेवेंट पैराग्राफ जनाब, background company of the group undergoing rapid expansion through acquisition. Repatco has acquired two subsidiaries in years, Collison Co and Hammond Co. The current financial year end is 30th June 2008। ठीक है, ओके, तो अब आ जाए जरा नीचे। एक्विजिशन में लिपलाइट को acquired 80% of the 5 million equity shares of Collison Co 2000 X for cash of 90. The fair value of the NCI at acquisition was 22 million. Okay, at acquisition of 65, including the following asset, Co purchased a factory site several years ago. Prior to the date of acquisition, land and property prices in the area had increased significantly in years immediately prior to or prior to 1st July. So nearby sites had been acquired and converted into residential use. It is felt that that should the police and company site also be converted into residential use, the factory site would have a market value of 24 million. $1 million of cost are estimated to require to demolish the factory, okay, and to obtain planning permission for the conversion. Okay, Collison company was not intended to convert the site at the acquisition date and had not sought planning permission at that date. The depreciating replacement cost of the factory at 1st July X4 has been correctly calculated as at 17.4 million। ठीक है जी, हमें ये पार्ट मिल गया। अगर आगे जरा देखें, एक कुछ और इससे रिलेटेड हमें मिलता है। Collison company incurred losses during the year 30th June exit and an impairment was performed. The carrying amount of the net assets of Collison company at 30th June exit, including the fair value adjustment on acquisition but excluding goodwill, are as follows। गुडविल का हमें अमाउंट मिल गया। द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ, अच्छा जिसमें प्लांट एंड मशीनरी आ रही है, फैक्ट्री रिलेटेड कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा। was estimated and included in the which is damage in the storm and needs to be paid by 4 million. Other land and buildings are held at a recoverable amount. None of assets of Collison company including the goodwill have been impaired previously. Blah blah blah। हमें यहाँ पे रिलेटेड बाकी पैराग्राफ में कुछ नहीं मिला है रिगार्डिंग दी फैक्ट्री। ठीक है, तो अब हम लोग सीधा सीधा क्या करते हैं, अपने आते हैं वर्ड शीट पे। ठीक है, और मेरे क्वेश्चन का नाम क्या है, ल्यूप्लॉइड। ठीक है, अच्छा जी, ल्यूप्लॉइड है और हम लोगों ने सोल्यूशन किस तरह लिखना है, A1 का फेयर वैल्यू मेजरमेंट। हो गया, हेडिंग दे दी। अब आ जाए, सबसे पहले फेयर वैल्यू मेजरमेंट पे कौन सा स्टैंडर्ड हमारा अप्लाई होता है उस पर बात करते हैं। कौन सा है जी, IFRS 13। IFRS 13 फेयर वैल्यू मेजरमेंट डिफाइंस
fair value as the price which would be received as the price which would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. सही है जनाब, सबसे पहले तुमने डेफिनेशन बता दी फेयर वैल्यू मेजरमेंट की। क्या फेयर वैल्यू क्या है? प्राइस पे जो कि हमें रिसीव होती है एसेट को सेल करने में या फिर लाइबिलिटी को ट्रांसफर करने के लिए इन ऑर्डरली ट्रांजैक्शन बिटवीन मार्केट पार्टिसिपेंट जनरल डेट। अच्छा जी, आगे हम लोग बात करेंगे कि फेयर वैल्यू इज देयरफॉर नॉट सपोज to be entity specific but rather market focus. Essentially the estimate is the amount that the market would be prepared to pay for the asset। ठीक है जनाब, ये भी बात हमने कर दी कि फेयर वैल्यू जो है वो एंटिटी स्पेसिफिक नहीं होती भाई। एंटिटी स्पेसिफिक मींस जो कि एंटिटी खुद कंप्यूट कर रही है, लेकिन बट क्या होती है? मार्केट फोकस्ड होती है। ठीक है, ये वो अमाउंट होता है जो मार्केट तैयार होती है पे करने के लिए रेलेवेंट एसेट। ठीक है, अच्छा जी, आ जाए इसके ऊपर मजीद अगर हम बात करें क्या होगी? द मार्केट would consider all alternatives uses for the assessment of the price which they would be willing to pay for non-financial assets. Fair value should therefore be measured by consideration of the highest and best use of the asset। ठीक है, क्या बात होगी? यहाँ तक हमने ये बात कर ली कि मार्केट जो है वो कंसीडर करेगी जितने भी अल्टरनेट यूज हो सकते हैं एक एसेट के। हो सकते हैं भाई के उसको रेंटल पे दे दें, उसको अपने ओन के लिए यूज कर लें, उसको इन्वेस्टमेंट के लिए लगा दें, वो सारे चीजों को कंसीडर करेगी पे करने से पहले। ठीक है, अच्छा जी, आगे देखिए, आगे क्या बात करूंगा मैं? आइए आगे बात करूंगा फॉर नॉन फाइनेंशियल एसेट्स। fair value should therefore be measured by consideration of the highest and best use of the asset। ठीक है, there is a presumption that the current use would be the highest
and best use unless evidence exists to the contrary. ठीक है जी. नॉन फाइनेंशियल एसेट्स जैसे कि बिल्डिंग वगैरह, लैंड वगैरह, उसकी जो मेजरमेंट होगी कंसिडरेशन की, वो किस तरह होगी, हाईएस्ट या बेस्ट यूज क्या हो सकता है उस एसेट का. प्रिजम्पशन ये लिया है कि करंट यूज जो है वो हाईएस्ट और बेस्ट यूज है अनलेस कोई डिफरेंट एविडेंस आपके पास मौजूद हो. अच्छा जी, अब इसको जरा हम लोग सिनेरियो से लिंक करें. द फेयर वैल्यू ऑफ द फैक्ट्री साइट should be valued as if converted into residential use. Since this cannot be determined on a stand-alone basis, the combined value of the land and buildings is calculated. The $1 million demolition and planning costs should be deducted from the market value of $24 million. The fair value of the land and buildings should be $23 million. The fair value of the identifiable net assets at acquisition are कितनी होंगी जी? एक तो 65 million प्लस 23 million, कितना बना? टोटल बन गया आपका 88 million. ठीक है. अब हम लोग बात करेंगे इसके ऊपर. Depreciated replacement cost should only be considered as a possible method for estimating the fair value of the asset when other more suitable methods are not available. This may be the case when the asset is highly uh, highly specialized. ठीक है. डेप्रिशिएटिंग रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो है वो सिर्फ कंसीडर जाएगी अगर पॉसिबल मेथड जो है एस्टिमेट फेयर वैल्यू ऑफ एसेट का मौजूद हो, सूटेबल मेथड्स हो. अगर अवेलेबल नहीं होते तो जब और ये केस कब हो सकता है? जब एसेट जो है वो हाईली स्पेशलाइज्ड हो. ठीक है, आगे बात करते हैं. दिस इज नॉट द केस विद द फैक्ट्री साइट. ठीक है, फैक्ट्री साइट के साथ ये केस नहीं है. डेप्रिसिएशन is unlikely to be an accurate reflection of all forms of obsolescence
obsolescence, including physical deterioration, moreover, moreover, the rise in value of land and properties, particularly for residential use, would mean that to use depreciated replacement cost would most likely undervalue the asset. ठीक है जी, यहाँ पे क्या बात करी फाइनली मैंने कि फैक्ट्री साइड के साथ ये केस नहीं है। डेप्रिसिएशन जो है वो एक अनलाइकली है कि वो एक्यूरेट रिफ्लेक्शन दे ऑब्सोलेंस वगैरह की, फिजिकल डिटेरियोरेशन की। मजीद ये कि राइज इन वैल्यू जो है लैंड एंड बिल्डिंग प्रॉपर्टीज का वो सही है। तो और इसके मजीद ये कि जी अगर लैंड एंड बिल्डिंग प्रॉपर्टीज की अगर वैल्यूज बढ़ती है और तो डेप्रिशिएटेड रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो है वो अंडर वैल्यू कर देगा एसेट को, तो इसलिए हम इसको कंसीडर नहीं करते। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट में फिर आगे का डिस्कस करते हैं। टाटा बाय बाय।